Hello everyone. In this particular, we are going to discuss not the numerical but some important formula which will be required while solving the Fourier series coefficients value. Okay. So इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे खास फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आप Fourier सीरीज की न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो, या आपको किसी न किसी न्यूमेरिकल में इसकी नीड जरूर आने वाली है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप. ओके, इस पर्टिकुलर टाइप में मैंने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फार्मूलाज को यहाँ पर लिस्ट आउट किया हुआ है जिसकी नीड हमें Fourier सीरीज फाइंड करने में आने वाली है. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज, सपोज हियर वी हैव देयर इज अ फॉर्मेट ऑफ x इन मल्टीप्लिकेशन विद एन एक्सपोनेंशियल. तो अगर ऐसा फॉर्मेट आपको दिखे कहीं पे Fourier कोएफिशिएंट फाइंड करने के टाइम पर, सो इन दैट केस you can use this direct result of this particular integration. See, in Fourier series there are limits also, so we can apply limit to the whole. Okay, but there is no need to find this integration by using the integration by part formula. Directly we can use this result. So x into e raised to power ax can be e raised to power ax in bracket x by a minus 1 upon a square. Okay, so we can use this direct result in such cases. Now the second integration result is that suppose there is a multiplication of exponential with cosine. Okay, there is a multiplication of exponential with cosine, and then suppose we have to find its integration of this product. So in that case we can use this direct result here, e raised to power ax divided by this a square plus this b square. Okay, and then in bracket we have written here plus b sin bx plus a cos bx. So cos bx. Okay, so b sin bx plus a cos bx. So we can use this direct result of this particular integration. The thing that while finding that coefficient we have to do is we have to compare this standard result with that part. Okay, and then we will calculate, or we will compare. By comparing we will obtain this value of a, this value of x. Already I have solved one numerical where such results were used. Okay, so just visit that particular video of Fourier series and try to remember this particular formula. Similarly, if there is exponential in product with sign, then again we have e raised to power ax upon a square plus b square. In bracket there is a sin bx minus b cos bx. Okay, so to maintain the similarity between these two, the sine part is written first and then cosine part is written afterward. Okay, so here it is b sin bx plus a cos bx. Here it is a sin bx minus b cos bx. Okay, so this is your result. So okay, so these three standard integration result we can use while finding the Fourier series. Okay, ये आपको हेल्प कर सकता है, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ओके, इफ यू सी these three formulas, so in mathematics we already have seen how to obtain this result. Okay, by using this integration by part formula. Okay, this u and v is multiplied. So here one function is exponential, that is multiplied with another function. Okay, so it's a case of integration of product of two functions, and for that this is our formula. So this result is obtained by using this formula only. But while finding the Fourier series we have to find many Fourier coefficients like an, bn, a naught, and then exponential के लिए टाइम पे हमें cn फाइंड करना होता है. ऑलरेडी बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं. सो अगर ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज अगर हमें याद रहेंगे तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं. अदरवाइज अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके अगर हम स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेशन करते हैं देन हम रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन सारे रिजल्ट्स को डायरेक्टली याद कर लीजिए एंड देन कंपेयर इट
विथ वाइल फाइंडिंग द फूरियर सीरीज, जहाँ जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर आप इसको यूज़ कीजिए। ऑलरेडी मैंने वीडियोस में जो पहले लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी उसमें मैंने ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं, और कैसे यूज़ करना है, कैसे कंपेयर करना है, ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ये सब उसमें एक्सप्लेन किया है। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ रिवाइज ऑल दोज वीडियोज़। Okay, now why I have taken again this integration by parts. See here, two more examples, two more integration results I have taken here. Integration of this t with sin t, t with cos t. So I haven't mentioned here result, direct result like as I have mentioned here. Okay, इसके पीछे कारण ये है कि इनको बाय पार्ट्स हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें से आपको जानते हो मैथ्स में कि u किसको लेना होता है, v किसको लेना है, इसके लिए एक फॉर्मूला है या फिर एक ट्रिक है। दैट्स ट्रिक इज कॉल्ड आइलेट्स ट्रिक। ओके, जिसमें हम लोगों को प्रेफरेंस किसको देना होता है। सो बट हमारे फूरियर सीरीज में यहाँ पे मैंने जो लिस्ट आउट किए हैं सारे रिजल्ट्स, मोस्टली इनमें से ही कोई ना कोई इंटीग्रेशन के फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। सो आपको बस इतने ही प्रिपेयर करने हैं। अब ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर 3 देख लिए हैं। अभी इन दोनों के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो इट्स वेरी सिंपल। आप इन दोनों फंक्शन में से u किसको लो जो डिफ्रेंशिएट होकर लास्टली 1 हो जाए। फॉर एग्जांपल, क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो इस फॉर्मूला में इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज u इज टेकन आउटसाइड एंड देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ v फंक्शन। तो हम u को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इन दोनों में से u उनको लो जो जिसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाए। पहली बार में 1 होता है, इट्स ओके, अदरवाइज एटलीस्ट वो डिक्रीज होना चाहिए और फाइनली 1 हो जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप साइन को लेते हो तो साइन का क्या होगा, साइन का कॉस होगा, वापस से कॉस का साइन होगा, मतलब ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ साइन से कॉस, कॉस से साइन में कन्वर्ट हो रहा है। सो ऐसे केसेस में हमें u उसको लेना है जो डिफ्रेंशिएट होता होकर धीरे धीरे उसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप इसको इससे कंपेयर करो, इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे तो क्या आप लिखोगे, t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u फंक्शन विच इज t here, so dt upon dt. See, we are integrating with respect to time here with respect to x, तो जहाँ जहाँ पर dx है वहाँ पे हम लोग dt यूज़ कर रहे हैं, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो इससे क्या होगा, ये dt अपॉन dt 1 हो जाएगा एंड वी कैन ईजिली फर्दर वी कैन solve this integration. Likewise, integration of t and into cos t. Okay, I will take one more example of Fourier series where ऐसे जहाँ पर ऐसे cases आने वाले हैं. Okay, now let us see the third part. The third part is in the while solving the Fourier series ऐसे cases आ सकते हैं जहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के, जहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ओके, सो ऐसे केसेस में हमें प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आप इसको u इंटू वी वाले फॉर्म से अगर परफॉर्म करते हो इंटीग्रेशन u इंटू वी फॉर्म से, तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था u और v में से कोई एक तो भी ऐसा होना चाहिए जिसका डिफ्रेंशिएशन धीरे धीरे होते होते वो 1 हो जाए। बट अगर दोनों ही के दोनों फंक्शन अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल हैं तो हम जानते हैं कि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस का फर्दर साइन, मतलब लाइक प्लस माइनस जो भी हो, और इंटीग्रेशन भी फिर से वही होता है। मतलब ये एक कंटिन्यूसली लंबा सा इंटीग्रेशन चलता जाएगा, इसका एंड नहीं होने वाला है। सो इन सच केसेस हम लोग क्या करेंगे, इन सारे फॉर्मूलाज का हेल्प लेंगे जहाँ पर हम इन प्रोडक्ट्स को सम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो ऐसे इंटीग्रेशन जहाँ भी आए वहाँ पर आप इन सारे फॉर्मूलाज का हेल्प लो। ओके, सो आई हैव लिस्टेड ऑल द फॉर्मूलाज विथ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़। ओके, सो ये सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, इनमें से कोई भी आएगा तो आपको ये पर्टिकुलर रिजल्ट्स यूज़ करना है और फर्दर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करके उस फोरियर कोएफिशिएंट को आप फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे जो बताना था आप समझ में आ रहा होगा आपको कि एग्जैक्टली
these many results we have to keep in our mind while solving the Fourier series. So ऐसे ऐसे particular रिजल्ट्स आप डायरेक्टली अगर याद करते हो तो इट सेव्स योर टाइम, आपको आपका समय बहुत काफ़ी बचेगा वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. सो आई होप ये वीडियो आपको आपको बहुत हेल्प करने वाला है. आप ज़रूर इन सारे रिजल्ट्स को याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और जहाँ कहीं भी आप फूरियर सीरीज में इसका यूज़ होने वाला है वहाँ पर आप प्रॉपरली इसको यूज़ करेंगे. थैंक यू.